السلام علیکم۔ کہانی اب میں آپ سب کے لیے دیدہ و دلفر شیرہ، ایک خوبصورت سا ناولٹ آپ کے لیے جس کا نام ہے پہنچی وہیں پہ خاک، رائٹر سمرہ بخاری۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، کمنٹ، لائک اور شیئر بھی ضرور کیجئے گا۔ تو چلتے ہیں پھر کہانی کی طرف۔ راشدہ روٹی ڈال لے، ساقی بس آتا ہی ہوگا، رقیہ بیگم نے تیسری بار بیٹی کو پکارا اور ہدایت کی تھی، مگر وہ مزے سے بیٹھی اپنے کرتے پر کڑھائی کر رہی تھی۔ ایسی سنگ دل لڑکی میں نے نہیں دیکھی۔ ارے میرا بچہ صبح منہ اندھیرے گھر سے نکلتا ہے، رات کے 8 بجے سے پہلے اس کی واپسی نہیں ہوتی، جو کماتا ہے لا کر میرے ہاتھ میں رکھ دیتا ہے، اور میں وہ سارے کا سارا تم لوگوں کی ضرورتوں پر خرچ کر دیتی ہوں، پھر بھی تم لوگوں کو اس کا ذرا خیال نہیں۔ توبہ ہے، اتنی سی دیر میں کیا کیا باتیں سنا ڈالی۔ میں کوئی تختے طاؤس پر تھوڑی بیٹھی رہتی ہوں۔ صبح اگر ثاقب بھائی منہ اندھیرے جاتے ہیں تو میں ان کے اٹھنے سے پہلے اٹھ کر ان کے لیے ناشتہ بناتی ہوں، پھر آپ سب کے ناشتے کا انتظام کرتی ہوں۔ یہ وہ شہزادیاں، اشارہ بہنوں مسرت اور روزینہ عرف ننھی کی طرف تھا، یہ تو صرف پڑھائی کے بہانے اسکول میں جا کر مزے کرنے کے لیے دنیا میں آئی ہیں۔ ساری مصیبتیں رہ گئی میری جان کے لیے۔ صبح سب کے لیے ناشتہ بنانا، برتن دھونا، آٹا گوندنا، پھر دوپہر کی مصیبت پڑ جاتی ہے کہ جس شہزادے شہزادیوں نے تھکے ہارے گھر آنا ہے ان کے لیے کھانا تیار ہونا چاہیے۔ سبزیاں بنا بنا کر میرے تو ہاتھ تھک گئے، دالیں چن چن کر آنکھیں اندھی ہو گئیں، پھر بھی سارا عتاب ہے تو میری اکیلی جان کے لیے۔ آپا، زیادہ مظلوم بننے کی ضرورت نہیں۔ 1:30-2 بجے اسکول سے آتے ہیں، سارا گھر گندا پڑا ہوتا ہے، برتن یوں ہی دھونے والے رکھے ہوتے ہیں۔ کھانا کھا کر بجائے کچھ دیر تھکن اتارنے کے میں پہلے برتن مانج مانج کر تھکتی ہوں، پھر سارے گھر میں جھاڑو پوچھا لگا کر بے ہوش ہونے کے قریب ہو جاتی ہوں، پھر بھی بات بات پر تم یہ سناتی ہو کہ سارا بوجھ تم پر ہے، میں تو مزے سے بیٹھی رہتی ہوں۔ مسرت بھلا ایسے الزامات پر کیوں کر چپ رہ سکتی تھی؟ ننھی البتہ کان لپیٹے پڑی تھی کہ اس نے واقعی کبھی کسی کام کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ 15 سال کی ہونے کو آئی، اب تک ننھی تھی، ویسے بھی ابھی صرف تھی کلاس 7ویں میں۔ اس سے بڑی مسرت ماشاءاللہ سے 18 برس کی ہو کر بھی ابھی 9ویں جماعت کو رونق بخش رہی تھی۔ ویسے اسکول میں اس کی جو عمر لکھوائی گئی تھی اس کے حساب سے بھی 16واں شروع ہوا تھا، تو مجھ پر کوئی احسان کرتی ہو؟ یہ تو کسی کے یاد نہیں رہتا کتنی روٹیاں توڑی ہیں، آٹا گوندھوں، روٹیاں پکاؤں، مجھے تو پتہ نہیں کیا سمجھ رکھا ہے۔ راشدہ کے دکھ ختم ہونے میں نہیں آ رہے تھے، اور وہ جو ہر دوسرے مہینے ایک جوڑا خرید لاتی ہو وہ کون سی کر دیتا ہے؟ یہی کام چور نکمی مسرت، ہائے پتہ نہیں کون سی منحوس گھڑی تھی جو امی جی کی باتوں میں آ کر میں نے سلائی کٹائی سیکھ لی۔ ادھر آس پڑوس میں کوئی شادی ہونے لگتی ہے، ادھر میری دونوں بہنوں کو نئے کپڑے بنانے کی پڑ جاتی ہے، جیسے وہاں سب انہیں تو دیکھنے کو ترس رہے ہوتے ہیں۔ یہ سج بن کے نہ گئی تو لوگوں کو بڑی ہی مایوسی ہوگی۔ مسرت کی آواز قدرتی گونجدار تھی، بولتی نہیں للکارتی محسوس ہوا کرتی تھی۔ امی جی، میری بات کان کھول کر سن لیں، آئندہ میں مسرت باجی سے کپڑے نہیں سلواؤں گی، میرے کپڑے محلے کی سب سے اچھی درزن گڈی آپا سیا کرے گی۔ ننھی میں نخرہ سب سے زیادہ تھا، پھر گھر بھر کی لاڈلی بھی تھی۔ مسرت کی باتیں نازک مزاج پر تازیانہ بن گئی تھی۔ اور راشدہ آپا، بیگم صاحبہ، یہ بھی یاد کر لو، گھر بھر کے میلے کپڑوں کے ڈھیر کون دھوتا ہے؟ مسرت نے پھر یاد دلایا، ہاں ڈھیر، یہاں سال میں 2 جوڑے بن جائیں وہ بھی بہت، یہ ڈھیر جو تم سنا رہی ہو محلے والوں کے دھوتی ہوگی۔ ہاں اگر کبھی دھونے پڑے یہ میلے چکٹ کپڑے پھر پتہ چلے، باتیں بنانا تو بڑا ہی آسان ہوتا ہے۔ خدا کی مار حرام خورو، بس کرو، چل راشدہ، اب تو چولہے کے پاس دفع ہو جا، اور مسرت جلدی سے اندر چل کر اپنے بڑے بھائی اور ابا کا ایک ایک جوڑا استری کر کے ٹانگ دے۔ اور ننھی، تو بھی تھوڑی تمیز سیکھ لے، کام تو نے کوئی کرنا کیا ہے، زبان ہی ڈھنگ کی بول لے، یہ بھی غنیمت ہے۔ ہاں بس ساری سختیاں مجھ غریب کے لیے ہیں، وہ مظہر بھائی اور ظفری جیسے مرضی بکواس کر لیں، آپ بیٹھی مسکرائی جائیں گی، ایک لڑکی ذات، پھر سب سے چھوٹی، میری بھلا کوئی زندگی ہے؟ ننھی نے ہاتھ میں پکڑی کتاب اور اس میں چھپایا رسالہ پٹک کر دعائیاں دینی شروع کر دیں۔ 7 بجے کے قریب ابا اور مظہر گھر میں داخل ہوئے۔ ابا معمولی پڑھے لکھے تھے، ساری عمر بس ادھر ادھر کی چھوٹی موٹی نوکریاں کر کے جیسے تیسے بچوں کو پڑھایا تھا۔ بڑا ثاقب فیکٹری میں لگ گیا تھا، بس اتنا کما لیتا کہ ابا کی محدود سی آمدنی کے ساتھ مل کر گھر کا خرچ گھسٹ گھسٹ کر چلا سکے۔ مظہر صبح نوکری کی تلاش میں نکلتا تھا، شام کو مایوس لوٹ آتا، اور ظفری کا ٹائم فی الحال کالج میں کھیل تماشوں، گلی میں کھڑے ہو کر آتے جاتے نظاروں سے لطف اندوز ہوتے ہی گزرتا تھا۔
मजहर के मशागिल भी यही हुआ करते। पिछले साल से वो कुछ संजीदा सा हो गया था। साकिब के घर आते ही राशिदा ने फर्शी दरी पर चादर बिछाकर खाना लगा दिया। आज फिर शलजम। जफरी मुंह बनाकर पीछे हट गया। आज फिर से क्या मतलब है? पूरे 8 रोज पहले पक्के थे। अम्मी जी ने घूर कर देखा और याद दिलाया। मुझे जहर लगता है। उसका मुंह फूला हुआ था। जिसने नहीं खाना ना खाए। बड़े आए नवाब के पुत्र। अम्मी जी को ये नखरा अच्छा नहीं लगा। जफरी खाने से उठकर चला गया। भूखा सोएगा। अब्बा परेशान हो रहे थे। फिक्र ना करें अब्बा, अभी मजहर खाना खा ले तो इसके लिए अंडा मंगवा लेना। मैं भी अंडा खाऊंगी। मुझे भी शलजम पसंद नहीं। नन्ही भला क्यों पीछे रहती? हाँ, वो जो सुबह से शाम तक मेहनत करे वो तो शलजम खाए। तुम अंडे तल तल के उड़ाओ। रहने दे अम्मी जी, बच्चे हैं, क्यों डांट रही हैं? साकिब ने समझाया। खाना खाकर कुछ देर टीवी देखा गया जिसमें सब्ज कलर गायब था और अक्सर तस्वीरें लाल कलर में ही दिखाई देती थी। तीनों भाई एक ही कमरे में सोते थे। मजहर और जफरी तो सो गए। साकिब को नींद ही नहीं आ रही थी। वो गहरी सोच में डूबा हुआ था, मगर इसके चेहरे पर फिक्र या परेशानी के आसार नहीं थे, बल्कि आज इसके चेहरे पर इत्मीनान था। सुबह अभी नाश्ते का काम समेटा जा रहा था कि अम्मी जी के रिश्ते की बहन चली आई। बड़े दिनों बाद शक्ल दिखाई खालदा। मैं तो समझी मेरे घर का रास्ता ही भूल गई। अम्मी जी को इनके आने की कोई ख़ास खुशी तो नहीं हुई थी, मगर जिताना ज़रूरी समझा। बस रुकैया, घर के काम धंधे कहाँ फुर्सत देते हैं। फिर तुमने कौन सा चक्कर लगा लिया? तुम्हारे तो घर में काम करने के लिए 3 लड़कियां हैं, और मुझे ये भी पता है तुम घर नहीं बैठी रहती, इधर उधर मिलती मिलाती रहती हो। बस मेरे घर आती तुम्हारे पास टाइम की किल्लत पड़ जाती है। खालदा ने रुकैया की तंजिया बात के जवाब में भरपूर वार किया था। जी ही जी में रुकैया ने इन्हें कोसा। बज़ाहिर बात टालते बोली, ये बताओ आज मैं कैसी याद आ गई? शादी हो रही है मेरी शक्कों की, बस ये कार्ड देने ही आई थी। उन्होंने हाथ में पकड़े थैले से एक कार्ड निकालकर उसकी जानिब बढ़ाया। अच्छा, शादी हो रही है शक्कों की। राजी हो गए लड़के वाले? रुकैया बेगम के दिल को जैसे ठेस सी लगी थी। हाय, क्या मतलब? क्यों राजी ना होते? 6 महीने पहले खुद ही तो उन्होंने मंगनी की थी। कोई रस्म बंदूक के जोर पर तो लड़की को अंगूठी पहनाने नहीं लाए थे। खालदा बेगम को रुकैया का अंदाज तपा गया। लो, तुम तो बुरा ही मान गई। मैंने तो वही कहा जिसका चर्चा सारे खानदान में हो रहा था। सुनने में यही आ रहा था। लड़की पर यह एतराज़ है कि लड़के की अम्मा बहनों को ज़्यादा लिफ्ट नहीं करवाती। उनके आने पर बेजार सी दिखाई देने लगती है, और ये बात अम्मा बहनों ने दिल पर ले ली है। छोड़ो भी, लोगों को तो बकवास करने की आदत होती है। जल जाते हैं दूसरों की खुशी देखकर। खालदा बेगम इस बात को ज़्यादा तोल देना नहीं चाहती थी कि यही सच्चाई थी। जब तक बाकायदा मंगनी की रस्म नहीं हुई थी, शक्को बेगम लड़के की अम्मा बहनों से बड़ा मुस्कुरा मुस्कुरा कर मिलती थी। मगर मंगनी होते ही तेवर कुछ बदल से गए, और मंगनी कोई निकाह तो नहीं कि तोड़ने में मुश्किल हो। अम्मा और बहनें तो बिदक गईं। बड़ी मुश्किल से राज़ी किया गया इन्हें, और शक्को ने सोचा था अब बदमिजाजी के जौहर ससुराल की दहलीज पर पाँव रखने के बाद ही दिखाऊंगी। कार्ड देकर ज़रूर आने की ताकीद करके खालदा बेगम जब बैरूनी दरवाजे तक पहुंच गईं, तब राशिदा ने कहा, जा रही हो खाला, चाय तो पी लेती। उन्होंने घूर कर देखा कि राशिदा की काम चोरी और चालाकियों से खूब वाकिफ थी। फिर बोली, बेटी अभी तो घर के अंदर हूँ, गली में निकल जाती तब पुकारना था। और वो दरवाज़ा पार कर गई। हाय हाय नदीदी, पता नहीं कितने घरों में कार्ड देकर आ रही है। अक्सर ने चाय भी पिलाई होगी। यहाँ जो एक कप नहीं मिला तो कैसी जलन उठ रही है। हाँ, दूध पत्ती चीनी ये सब कोई मुफ्त में थोड़ी आते हैं। आई भी तो दिल जलानी थी। इसकी बदजुबान शक्कों का रिश्ता भी पक्का हो गया। अब शादी होने जा रही है। मेरी बेटियां इससे लाख दर्जे अच्छी होने के बावजूद घर में बैठी हैं। मुझे तो पता चला था रिश्ता टूट रहा है, मगर ना जी, हमारे नसीब में तो ज़रा सी खुशी भी नहीं है। अम्मी जी, हम उपटन माइयों मेहंदी में भी ज़रूर शिरकत करेंगे। राशिदा को कुछ जलन सी तो ज़रूर महसूस हुई, मगर इस जलन में अपना शुगल मेला बर्बाद कर लेना कौन सी अक्लमंदी थी। ठीक है, अगर पैदल उनके घर तक आ जा सकती हो तो मुझे तो कोई एतराज़ नहीं। वैगनों के किराए मैंने नहीं भरने। ठीक है, खाला खालदा का घर कौन सा ज़्यादा दूर है, हम पैदल चले जाएंगे। तब तक नन्ही और मुसर्रत घर आई। राशिदा अपने कपड़े निकाल कर जायज़ा ले चुकी थी। इसके पास 2 जोड़े अच्छी हालत में और नए थे। तीसरा वो था जो था तो ठीक, मगर ख़ानदान के हर फंक्शन में पिछले 3 सालों से पहना जा रहा था, मगर मजबूरी थी। वो जानती थी अम्मी जी के पास गुंजाइश ही नहीं होगी। शक्कों को जोड़ा भी देना होगा, फिर दूल्हा दुल्हन की सलामी अलग से होगी। घर में किसी को नया सूट ना भी बनवा कर दिया जाए, फिर भी छोटे मोटे के खर्चे तो निकल ही आएंगे। मुसर्रत और नन्ही घर में दाखिल हुई तो राशिदा ने शक्कों की शादी खबर सुनाई। अच्छा, फिर से बात बन गई?
مسرت بھی کچھ مایوسی اور حیرت سے کہہ رہی تھی، مگر اس کے ساتھ ساتھ فنکشن میں شرکت کی خوشی بھی بہت تھی۔ جلدی جلدی کھانا کھایا گیا، پھر اس کے بعد ان دونوں نے اپنے اپنے کپڑے نکالے۔ مسرت کے پاس بھی 3 ہی جوڑے اچھی حالت میں تھے، البتہ ننھی کی حالت ان دونوں سے کافی بہتر تھی۔ چھوٹی ہونے کی وجہ سے وہ فائدہ اٹھا لیا کرتی تھی۔ تینوں قد کاٹ میں ایک جیسی تھی، اس لیے فیصلہ یہی ہوا کہ ایک دوسرے کے جوڑے عدل بدل کر پہن لیں گے، یوں بھائی اچھی طرح گزارا بھی ہو جائے گا۔ رات کو جب ابا اور بھائی گھر آئے، تب بھی آج کی تازہ سب سے بڑی خبر شکو کی شادی کی ہی تھی۔ چلو جی، پھر کرسیوں ٹینٹوں کا انتظام، بارات کے استقبال کی تیاریاں۔ میں تو ابھی تایا کے ہاں ہونے والی شادی کی تھکن اتار رہا تھا۔ مظہر نے ابھی سے اپنے کندھے دبانے شروع کر دیے۔ ظفری خوش تھا، ذرا رونق میں دل پشوری کا سامان جو مل جانا تھا۔ بھائی تھوڑے پیسے دے دینا، میں نئی جوتی اور خرید لوں، ننھی لاٹ سے بولی۔ خبردار، بھائی کے پاس حرام کی کمائی نہیں آتی، راشدہ نے ڈانٹا اور مسرت سر ہلا کر بولی۔ فکر نہ کرو، اسکول میں میری بہت سی سہیلیاں ہیں، کسی سے جوتے کسی سے کپڑے ادھار لیے جا سکتے ہیں۔ راشدہ اور ننھی اس تجویز کو سراہنے لگیں۔ شادی بالکل ویسی ہی تھی جیسے اس طبقے میں ہوا کرتی تھی۔ شادی میں جو بات اچھی رہی وہ یہ تھی کہ کھانے پر پابندی ہونے کے باوجود خالدہ بیگم نے محلے کے ایک گھر میں رشتہ داروں کے لیے کھانے کا بڑا اچھا انتظام کر رکھا تھا۔ اور تو اور مہندی اور مائیوں والے روز بھی نان اور قورمے سے سب کی تواضع کی گئی، اور رشتہ دار شادی ہو جانے کے بعد بھی اسی فکر میں دبلے ہوتے رہے کہ خالدہ کے پاس اتنا پیسہ آخر آ کہاں سے گیا ہے۔ امی جی میں دبئی جا رہا ہوں۔ شام کو جب راشدہ نے کھانا لگایا تھا اور ابا جی پتلی دال چمچ کی مدد سے اپنی پلیٹ میں ڈال رہے تھے، تب ثاقب بھائی نے بڑے ہی اطمینان سے دھماکہ کیا تھا۔ ابا جی کے ہاتھ سے چمچ چھوٹا، جگ گلاس لاتی مسرت کے برتن آپس میں ٹکرا گئے۔ امی جی کے دل کی دھڑکن جیسے تھم کر دوبارہ رواں ہوئی، اور بہن بھائی جہاں جس حال میں تھے ویسے کے ویسے بت بن کر رہ گئے۔ میں نے ٹھیک سے سنا نہیں پتر، تو کیا کہہ رہا ہے؟ محنت مزدوری کر کر کے تھکے ہارے ابا جی اسے سماعت کا دھوکہ سمجھے تھے۔ میں دبئی جا رہا ہوں، کل شام کی فلائٹ ہے میری۔ دھماکے پہ دھماکہ، یا اللہ ایک ہی ہو رہا ہے۔ سب کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے سے پڑ گئے۔ آپ سب کو پہلے اس لیے نہیں بتایا کہ اگر کسی وجہ سے کام نہ بنتا تو بڑی بری طرح مایوس ہوتے آپ لوگ۔ اب تو سب کچھ مکمل ہے، بس سوٹ کیس میں 2 جوڑے ہی رکھنے ہیں۔ بھائی سچ کہہ رہے ہو؟ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا۔ ننھی کی آواز میں لرزش، لہجے میں بے یقینی تھی۔ بالکل سچ کہہ رہا ہوں، ڈھیروں روپیہ کما کر بھیجوں گا، تم لوگ اچھا سا مکان بنانا۔ ابا بڑا سا سٹور ڈال لیں گے، مظہر ابا کے ساتھ وہ سٹور چلائے گا اور ظفری بہت سا پڑھے گا۔ ثاقب تو سارے پلان بھی بنائے بیٹھا تھا۔ اس رات نہ تو کسی کو دال پتلی اور بدمزہ لگی، نہ ہی روٹی کم پڑنے کی شکایت ہوئی۔ خوشی نے محفل کا رنگ ہی بدل دیا۔ بڑے ہی خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا گیا۔ تینوں بہنیں جو ہمیشہ برتن سمیٹنے کے مسئلے پر الجھا کرتی تھیں، آج مل کر برتن اٹھا رہی تھیں۔ کسی کام کو ہاتھ نہ لگانے والی ننھی نے بغیر کسی کے کہے سب دھو کر سلیقے سے رکھ دیے۔ رات گئے باتیں ہوتی رہیں۔ ثاقب سمجھاتا رہا، 5 سال کے معاہدے پر جا رہا ہوں، جو کچھ بھیجوں گا اسے یوں خرچ کرنا کہ مستقبل میں پریشانی نہ ہو سکے۔ ایک بار کاروبار جم جائے پھر پھلتا پھولتا ہی رہتا ہے۔ پھر یہاں پر آپ 3 محنت کرنے والے ہوں گے، نہ تو مشکل پیش آئے گی، نہ ہی کسی پر کام کا کوئی زیادہ بوجھ رہے گا۔ ثاقب بولتا رہا، سبھی مؤدب بنے اس بات میں سر ہلاتے رہے، آنکھوں میں مستقبل کے سہانے سپنے جگمگاتے رہے۔ امی جی اور ابا جی کا خیال تھا شہر میں جتنے بھی عزیز رشتہ دار موجود ہیں سب کو ثاقب کے باہر جانے کی اطلاع دے دی جائے، مگر ثاقب نے شدت سے مخالفت کی۔ جب تک میں دبئی پہنچ کر فون نہ کر لوں کسی کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں۔ لو بھلا، فون تو گھر میں ہے ہی نہیں، فون کہاں کرو گے؟ فی الحال تو پڑوس کے نمبر پر کروں گا، بعد میں پھر آپ لگوا لیجئے گا، اب کون سا مسئلہ رہ گیا؟ کبھی ہوا کرتا تھا فون لگوانا ایک آزمائش کے برابر۔ بھائی سب سے پہلے تو ہم کلر ٹی وی لیں گے۔ یہ جو ڈبہ ہمارے گھر پڑا ہے نا، اسے کلر ٹی وی کہنا کلر ٹی وی کی توہین ہے۔ ثاقب نے نفی میں سر ہلایا۔ پہلے دکان ڈال لی جائے گی، جب آمدنی کا مستقل ذریعہ بن جائے گا پھر جو مرضی لیتے رہنا۔ اور سب نے بھرپور اتفاق کرتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ایئرپورٹ تک الوداع کہنے کو سبھی تیار تھے۔ لڑکیوں نے سہیلیوں سے ان کے بہترین جوڑے ادھار مانگ لیے تھے، جوتے بھی لے لیے گئے۔ اپنی طرف سے پوری فیشنیبل بن کر وہ ایئرپورٹ پہنچی تھیں۔ ہائے اللہ کتنا چکنا فرش ہے، اونچی ہیلوں والی سینڈلیں وہ بھی مانگے کی، پاؤں جمانا مشکل ہو رہا تھا۔ دبئی کی فلائٹ پر جانے والوں کے عزیزوں کی اکثریت اسی طرح کی ہوا کرتی ہے۔ ایئرپورٹ اس وقت ریلوے اسٹیشن کا منظر پیش کرنے لگتا ہے جب عرب امارات کی کوئی فلائٹ آنے یا جانے والی ہوتی ہے، اس لیے انہیں اپنے میک اپ اور کپڑوں کی طرف سے کوئی پریشانی نہیں ہو رہی تھی۔
बल्कि मुसर्रत का ख्याल था यहाँ हमसे ज़्यादा फैशन वाली कोई नहीं लग रही। अगली सुबह कितनी रोशन और चमकदार थी। साकिब ने पहुंचते ही खैरियत का फ़ोन कर दिया था और पड़ोसन ने पूछा था, बहन खैरियत तो है ना? ये साकिब कहाँ से फ़ोन कर रहा था? दुबई से। अम्मा का अंदाज ये बताते हुए कुछ से कुछ हो गया। दुबई? पड़ोसन तो आंखें झपकना भूल गई। हाँ हाँ, वो दुबई चला गया ना, बस हम जल्द ही अपना फ़ोन लगवा लेंगे, थोड़े दिन ही तुम लोगों को तकलीफ़ होगी। अरे नहीं बहन, तकलीफ़ की भला क्या बात है? चलो किसी बहाने तुम हमारे घर तो आई, वरना ये 2 घर छोड़कर तो मेरा घर है और तुमसे यहाँ तक आना भी मुश्किल है। आज फ़ोन के बहाने ही सही आ ही गई हो तो मैं तुम्हें इतनी जल्दी जाने नहीं दूंगी। मेरी शाहिदा भी तुम लोगों को अक्सर याद करती है, बेचारी अकेली है ना, सारा दिन घर के काम धंधों में उलझी रहती है। मैं तो कहती हूँ कि शाहिदा तो जिस घर जाएगी सास नंदों को तो पलंग पर बिठा देगी। कहना बेटियों को चक्कर लगाएं किसी रोज़, और तुम्हें तो चाय पिलाई बगैर मैं बिल्कुल नहीं जाने दूंगी। शाहिदा, शाहिदा देख तो कौन आया। अरे तेरी रुकैया खाला आई हैं, चाय बना कर ला, साथ में वो केक भी लेकर आ जो तुम्हारे मामू लेकर आए थे। पड़ोसन का लहजा अचानक वालहाना हो गया और रुकैया इन मोहब्बतों अनायतों को अपना हक समझ रही थी। घर आकर सब बच्चों को आवाज़ें देकर इकट्ठा किया, साकिब के फ़ोन के बारे में बताया, फिर हंस हंस कर पड़ोसन की नकल उतारी। सच तो ये आज रुकैया बेगम फिर से जवान हो गई थी। क्या ख्याल है साकिब की माँ, आज रिश्तेदारों के यहाँ ना चला जाए? भाई सबको बताएंगे हमारा बेटा दुबई चला गया। देखना कैसे सब हमारी आओ भगत करेंगे। अब्बा जी सर उठाकर छाती फुलाकर बात कर रहे थे। लो रहे ना भोले के भोले। भाई आज ही सबके यहाँ क्यों जाएं, बारी बारी जाएंगे, किसी रोज़ चची फातिमा के घर अच्छा सा खाना, तो कहीं आपा सुगरा के घर दावत। सब ने अम्मी जी के फैसले और अकल को खूब सराहा और मुसर्रत ने कहा, अम्मी अब्बा आप दोनों अकेले अकेले दावतें नहीं उड़ाएंगे, बारी बारी हम में से एक एक साथ जाया करेगा, हम भी तो दावतें खाएंगे ना। मुसर्रत भी अम्मी जी की तरह बड़ी ही ज़हीन है। जुल्फ़ी ने दाद दी। सब ने इस तजवीज़ से पूरा इत्तफाक किया। आज शाम को चचा की तरफ जाने का फ़ैसला हुआ। वो पूरे ख़ानदान में ज़्यादा पैसे वाले थे और अपनी दौलत पर इतराते भी बहुत थे। पिछले दिनों अपना घर बनवाया था, सबको बुलाकर खूब शो मारी थी, मगर बजाय इस खुशी में रिश्तेदारों को खाना खिलाने के बस समोसों, जलेबियों और चाय पर टरका दिया। सब ने इनके मकान से पैदा होने वाली जलन को ये कहकर मिटाने की कोशिश की, जो कुछ था सब मकान पर लगा चुके हैं, अब तो रिश्तेदारों को एक वक्त का खाना भी बेचारे नहीं खिला सकते। अम्मी जी ने अपना बेहतरीन सूट, जो उनके सब सूटों में बेहतरीन था, निकाला। राशिदा ने दबा कर इस्त्री किया। अब्बा जी ने तो धोबी से ज़िंदगी में पहली बार कपड़े इस्त्री करवाए। आज उनके साथ राशिदा जा रही थी और वो भी फुल तैयारियों में थी। जब वो चचा के घर में दाखिल हुए, चची के भाई भावज आए बैठे थे। उनके सामने मेज़ पर चाय के साथ समोसे, केक और चाट रखी थी। वाह क्या ठाट बाट है। और हम जो कभी चचा के घर आया करते थे, चाय के साथ 10 रुपए वाला बिस्किट का पैकेट खुला हुआ करता था, वो भी बड़ी मुश्किलों से। खैर अब तो वक्त ही बदल गया। रुकैया ने अपने मियाँ अब्दुल की तरफ देखा, वो भी यही सोच रहे थे। दोनों मुस्कुराए और इस बात में सर हिला दिया, जबकि राशिदा मुंह उठाए बड़े स्टाइल में खड़ी कमरे और मकीनों का जायज़ा ले रही थी। अरे तुम लोग इस वक्त, वो भी बगैर किसी इत्तला के। चची को उनकी आमद बहुत ही बुरी लगी थी। चचा अलबत्ता थोड़ी मुरव्वत से मिले थे। उनकी दोनों बेटियां अपनी मामूजात बहनों को कुछ नए सूट दिखा रही थीं। इन्हें देखकर ऐसी बेमज़ा हुई कि सब कुछ लपेटने लगी। आप लोग तो आते ही नहीं, हमने कहा हम ही जाकर खैरियत मालूम कर लें। रुकैया बेगम किसी के कहने से पहले ही खुद ही कुर्सी खींच कर बैठ गईं। तब उनके मियाँ ने भी तकलीद की, और सुनाओ सब खैरियत है? चचा पूछ रहे थे। चची ने उनके सामने से चाट का बर्तन उठाकर अपने भाई के सामने रख दिया था। हाँ हाँ सब खैरियत ही है, बस वो साकी मुल्क से बाहर चला गया है, इसकी तरफ से दिल बड़ा उदास रहता है, इसलिए आज ज़रा दिल बहलाने को आप लोगों की तरफ चले आए हैं। अच्छा, क्या किसी दूसरे शहर तब्दीली हो गई साकिब की? चचा बेचारे इससे ज़्यादा क्या सोच सकते थे। नहीं। अच्छा कमाल है, आप लोगों को पता ही नहीं। हाँ भाई, अरसा हुआ हमारी तरफ आना जाना जो छोड़ दिया। मेरा साकिब दुबई चला गया, बड़ी अच्छी नौकरी मिल गई इसे वहाँ पर। अच्छा, सभी चौंके थे और फिर महफिल का रंग ही बदल गया। अभी जो बर्तन उनके सामने से उठाया गया था, अब इसी में से चाट निकालकर चची उन्हें पेश कर रही थी। तुम लो ना अब्दुल, तकल्लुफ़ क्यों कर रहे हो? अब्बा के इनकार पर मोहब्बत से डपट कर इसरार कर रही थी। मैं ऐसी खट्टी मीठी चीज़ें पसंद नहीं करता। धान पान से अब्बा टांग पर टांग जमाए अकड़ कर बैठे राशिदा को किसी कदर मोतबर और प्यारे ही लग रहे थे। आज से पहले अब्बा को हमेशा सर झुकाकर बैठे ही देखा था, खासकर रिश्तेदारों की महफिल में इंतहाई फालतू बेज़रत शय दिखाई दिया करते थे। मगर आज के अब्बा तो बहुत ही मुख्तलिफ थे।
अच्छा तो केक तो लो ना, चचा ने दूसरा आइटम आगे बढ़ाया। अब्बा ने बज़ाहिर तकल्लुफ़ वाली सूरत बनाते हुए 3 पीस इकट्ठे उठाकर अपनी प्लेट में रख लिए। अम्मी जी और राशिदा ने भी खूब इंसाफ किया। चची के भाई भावज तो आधे घंटे के बाद चले गए, मगर इन्हें जब चची ने खाने पर रुकने को कहा तो एक बार भी इनकार नहीं किया। हाँ भाई, पुलाव, मुर्ग कौरमा, जेली, कस्टर्ड खाते हुए अम्मी जी ने ज़रूर इन्हें बता दिया कि वो सिर्फ उनका दिल रखने को रुक गए थे, वरना घर में आज मुसर्रत निहारी बना रही थी। आती रहा करो रुकैया, बाकी बच्चों को भी साथ लेकर आना। रिश्तेदारों को आपस में मिलते मिलाते रहना ही चाहिए। साकिब तो मिले बगैर ही चला गया। मैं तो कई दिनों से इसे बड़ा ही याद कर रही थी। बड़ा ही नेक और साबिर बच्चा है। मेरे बच्चे भी बड़े ही सादा मिजाज के हैं, इसीलिए भी वो मुझे बड़ा ही प्यारा लगता है। इसका फ़ोन आए तो मेरा बहुत बहुत सलाम, प्यार, दुआ कहना और मुझे इसका नंबर भी देना, मैं ख़ुद बात करूँगी। सुना तुमने अब्दुल साहब, चची फरमा रही थी मुझे साकिब का नंबर देना। क्या उल्लू समझ रखा है उन्होंने हमें? हम अपने बच्चे का फ़ोन नंबर इन्हें दे दें ताकि अपनी बेटी की राह हमवार कर लें और हम मुँह देखते ही रह जाएं। हमने कौन सा नंबर दे देना है? अब्दुल साहब अपनी चालाकी पर मुस्कुराए। हम दे ना दें हमारी मर्जी। दुनिया को देखो किस कदर चालाक है, कितने आराम से मेरे बेटे का नंबर मांग लिया। नास पीटे जलील रिश्तेदार। रुकैया बेगम और राशिदा का गुस्सा किसी तरह कम होने में ही नहीं आ रहा था। घर आकर जले भुने अंदाज में सबको ये किस्सा सुनाया। मुसर्रत, नन्नी, मजहर खूब ही तपे, जबकि जफरी मुस्कुराता रहा। जब किस्सा तमाम हुआ तो बोला, क्या आपको पहले से इल्म नहीं है मतलबी रिश्तेदारों का? उनकी बातों को दिल पर मत लें, बस इनके घर जाएं, खाएं पिएं, उनकी बातों और रवैयों को एंजॉय करें और बस। वाकई जफरी की बात में वज़न था। इसके समझाने पर इन्हें अपनी बेवकूफ़ी का एहसास हुआ। अब वो गुस्सा करने के बजाय चचा और उनकी फैमिली की बातों को याद करके हंसने लगे और प्रोग्राम बनाने लगे। कल खाला सोगरा की तरफ जाना है, साथ में मजहर जाएगा। फिर मेरी बारी कब आएगी? नन्नी ने तो कपड़े भी इस्त्री करके टांग दिए थे। सब्र करो, अभी तो बहुत से रिश्तेदार मिलने मिलाने वाले बाकी हैं। जी हाँ, और अब तो नए नए रिश्तेदार मिलने मिलाने वाले पैदा होंगे, जफरी मुस्कुराया था। खाला सुगरा के यहाँ शाम को जाने का इरादा था, मगर चचा इतनी अहम खबर को छुपा नहीं सके। उनके जाने से पहले खबर पहुँच गई और दोपहर तक रिश्तेदारों की अक्सरियत मुबारकबाद देने उनके यहाँ पहुँच चुकी थी। अक्सरियत फल मिठाई लेकर आई थी, इसी से उनकी तवाज़ो कर दी गई। खाने का तो टाइम हो रहा था, मगर खाने पर किसी को नहीं रोका और किसी ने बुरा भी नहीं माना। देखा, ये होती है पैसे की ताकत। अभी तो सिर्फ दौलत मिलने का चांस है, मिली नहीं, मगर सब खींचे चले आ रहे हैं हमारी मोहब्बत में बेताब बेकरार। मजहर हंस रहा था। जफरी ने मुंह बनाया और बोला, चांस वाली बात क्यों की? बस समझो पैसा आया कि आया। यही महीना तंगी का है, बल्कि तंगी का ये भी नहीं होगा। अब तो जिससे भी कर्ज मांगेंगे देगा नहीं, बल्कि खिदमत में पेश करेगा। मैंने तो सोच लिया कि मेरे एक दोस्त के अब्बा बहुत पैसे वाले हैं, 1 माह के लिए उनसे कुछ उधार ले लेता हूँ। आखिर बिरादरी में आना जाना है, हमारी टोर भी सबसे अलग दिखाई देना चाहिए। जफरी तीनों भाइयों में छोटा था, मगर बचपन से अक्ल व दानिश के ऐसे मुजाहरे करता आया था जिससे अम्मी जी बड़ी ही मुतासिर रहा करती थी। और अब तो वो जफरी की हर बात गौर से सुनने और अमल करने को नेक शगुन की तरह लेने लगी थी। और सब कान खोल कर सुन लें, कर्ज़े वाली बात साकिब भाई के इल्म में नहीं आना चाहिए। वो ज़रा और तरह के ख्यालात के हैं, यही कहेंगे क्या ज़रूरत थी कर्ज़ लेने की, 1 महीना इंतज़ार नहीं कर सकते थे? मगर भाई हकीकत तो ये है कि अब 1 महीने तक का इंतज़ार मुश्किल और फजूल है। हाँ हाँ, जफरी ठीक कहता है। अब्बा अम्मी दोनों ने इत्तफाक कर लिया तो बाकी कौन होते थे इनकार करने वाले। चलो बाकी के मंसूबे बाद में बनाएंगे। ये मिठाई लो ना, साथ में चाय भी बनाई है मैंने। अब तक की लाइफ में अपने होम में इतनी मिठाई नहीं देखी। हल्का हल्का मेकअप किए बड़े एतमाद से अंग्रेज़ी मारती मुसर्रत सबको वाकई बड़ी मॉडर्न सी लगी थी। इस घर में जफरी के बाद जिसकी जहानत को तस्लीम किया जाता था वो मुसर्रत ही थी, और सबसे पहले जून बदल कर इसने साबित कर दिया वाकई ज़हीन है। शाबाश मुसर्रत, मुझे तुम्हारी सलाहियतों पर हमेशा ही भरोसा रहा है। इन दोनों को भी अकल सिखाओ। और मजहर भाई, अब्बा जी, आप दोनों मेरी बात सुनें। अब हमें इस मोहल्ले में हरगिज़ नहीं रहना। बहुत ऊंचे इलाके में ना सही, किसी अच्छे इलाके में साफ़ सुथरे घर की तलाश आप दोनों कल सवेरे से शुरू कर दें। इस घर में हम शाही पोशाक पहनकर भी बैठ जाएं, लोगों को मुतासिर नहीं कर सकेंगे। सबसे पहले घर अच्छा होना चाहिए। जफरी की इस बात पर दोनों ने इस बात में सर हिला दिया और दिल से मान भी लिया। इधर साकिब की तरफ से रकम मिली, उधर घर तब्दील कर लिया गया। इसे 1 महीने में मॉडर्न बनने की रोज़ाना 1 घंटा प्रैक्टिस की गई
और उस्ताद जनाब ज़फ़री साहब के अलावा और कौन हो सकता था। बहनों को तो खैर ख़ुद भी फैशनेबल कहलाने का बड़ा ही शौक़ था। बाल कटवा कर डाई भी करवा लिए, ब्राउन बालों में लाइट ब्राउन बल्कि सफ़ेद के करीब पहुंचती लटें। रुकैया बेगम को तो बिल्कुल पसंद नहीं आई। लड़कियां बड़ी ही खुश थीं। सबसे ज़्यादा मेहनत रुकैया बेगम के साथ हुई। ना तो इंग्लिश का कोई लफ्ज़ उनके दिमाग में समाता था, न इन्हें महंगे कपड़े इस्तेमाल करने का सलीका था। इतने खूबसूरत दुपट्टे उन्होंने रोल ही डाले। एक का कोना तो कुर्सी के पाई के नीचे आकर फटा, एक जल गया। कमीज़ों के दामन पर कभी घी तो कभी हल्दी के धब्बे लग जाते और ज़रा सी हील के इस्तेमाल से पैरों में दर्द शुरू हो जाता। ज़फ़र भाई अम्मी जी को इनके हाल पर ही छोड़ दें। नन्ही को माँ की कोट दिमागी पर बड़ा ही ताव आता था। नहीं नहीं, अम्मी जी की तैयारी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। माँ जाहिल हो तो ताड़ने वाले फ़ौरन ही ताड़ जाते हैं, समझ लेते हैं ख़ानदानी और जद्दी पुश्ती रईस नहीं है। और एक तो तुम तीनों की शक्लें ऐसी पक्की गली मोहल्ले में बसने वाली लड़कियों जैसी है। लाख फैशन कर लो, असलियत उछल उछल पड़ती है। और ऊपर से जाहिल अम्मी जी। नो नो, यूँ तो मेरा मुस्तकबिल तारीख होता चला जाएगा। बालों को डाई किए, होंठों के नीचे नन्ना सा बालों का गुच्छा रखे, हर वक्त रंग बरंग टी शर्ट्स चढ़ाए रहने वाला ज़फ़री घर भर को बड़ा मुतासिर करता था। फैशन तो मजहर ने भी किए, मगर ज़फ़री की तो अदा ही निराली थी और इसने इन निराली अदाओं को कैमरे में कैद भी करवा लिया। बहनें बड़े शौक़ से यह एल्बम लेकर स्कूल गई थी और लड़कियों में अपने भाई की खूब ही शो मारी थी। तुम्हारे अब्बा ने भाई को यूँ रंग बरंग बाल रंगने और सर पर यूँ सीधे सीधे खड़े करवा लेने पर कुछ नहीं कहा। मेरे भाई ने तो एक बार ख्वाहिश की थी। अब्बा ने चप्पल उठाकर दो तो इसी वक्त उसके सर पे मारी थी और कहा था कि अगर ऐसा कोई फैशन किया तो सर पे तेज़ाब डाल के सारे बाल ही मुका दूंगा। नसरीन, तुम्हारे और मेरे अब्बा में बड़ा फ़र्क है। तुम्हारे अब्बा ठहरे जाहिल सब्ज़ी फरोश, मेरे अब्बा ज़रा रोशन ख्याल है। अब तो बहुत बड़े बिजनेसमैन बनने वाले हैं। दोनों बढ़ चढ़ कर शेखिया भगारा करती थी। ज़फ़री चाहता था दोनों का स्कूल बदल दें, मगर इस पर वो किसी तरह राज़ी नहीं थी और इस मामले में ज़फ़री को इन्हें इनके हाल पर छोड़ना पड़ा था। फ़ोन घर में मौजूद था। साकिब से अक्सर बातचीत होती रहती। इसे इनका नए इलाके में घर ले लेना पसंद नहीं आया था। कह रहा था, मैंने आप लोगों से कहा था जमा करने की कोशिश करें ताकि किराए के घरों से जान छूटे और हम अपना घर ले सकें। भाई तुम्हारी बात ठीक है, मगर राशिदा आपा की उम्र शादी की है। अच्छे घर में रहेंगे तभी इनके अच्छे रिश्ते आएंगे। ज़फ़री ने कायल करना चाहा। ख़ानदान में कितने ही तो लड़के हैं, पहले की बात और थी। अब तो हम अच्छा खासा जहेज़ दे सकते हैं, कहीं भी बात चलाने की कोशिश तो करो। ख़ानदान? ज़फ़री को जैसे करंट लगा, चिल्ला कर बोला, नाम ना लीजिए इन बेमुरव्वत बेमहर रिश्तेदारों का। पहले हमसे इसलिए ताल्लुक़ नहीं रखते थे कि हम सबसे माली हैसियत में कम थे। अब ऐसी जलन में मुब्तला हैं कि हमें देखना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। ऐसे में यहाँ रिश्ता करना दीवाने का ख्वाब ही हो सकता है। वो भाई को कायल करता रहा और बताता रहा कि इस जैसे ज़हीन भाई के होते साकिब को परदेश में बैठकर फ़िक्रमंद होने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं। मैं जो भी फ़ैसला करूँगा ना, अब सबके मफाद को मद्देनज़र रखूँगा। ठीक है, घर तो किराए पर ले लिया, मगर देखना अब फर्नीचर बनवाने के सिलसिले में फ़जूल खर्ची मत करने लग जाना। फ़िलहाल सादगी से रहो और कुछ जमा करने की कोशिश करना ताकि अब्बा और मज़हर जल्दी अच्छा जनरल स्टोर बना सकें। तौबा है भाई से। मज़हर ने सुना तो मुंह बनाया। अब्बा खफगी से बोले, ये मेरी आराम की उम्र है, इसमें भी काम के लिए कह रहा है। अच्छा बस, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मत किसी बात को हेड पर सवार किया करें। बच्चे कब से कह रहे हैं नया टीवी ले आओ, आप हो के सुनते ही नहीं हो जी। हाँ हाँ अब्बा जी, सॉरी डैडी जी। अब घर में नया टीवी, इसकी खूबसूरत ट्राली आ जानी चाहिए। तीनों लड़कियां भी ठुनकने लगीं। ज़फ़री बोला, आजकल सिर्फ एक टीवी से क्या है, पूरा सेट एक जैसा आना चाहिए। मगर उफ, भाई की कंजूसियाँ। चलो खैर, फ़िलहाल टीवी ले आते हैं। और हमारा ही फ्रिज सेकंड हैंड लिया था, अब तो बराए नाम ही कूलिंग करता है, ये भी नया आना चाहिए। ज़रूरत तो कंप्यूटर की भी बहुत है। मज़हर ने भी आह भरी, वो भी आ जाएगा। अभी साकिब को गए देर ही कितनी हुई है, सब बना लेंगे। रुकैया ने मासूम बच्चों को तसल्ली दी। क्या ख्याल है, आज रात का खाना कहीं बाहर ना खाया जाए? राशिदा ने अभी से मज़ा लेते हुए कहा। और इनकार किस काफर को हो सकता था? रुकैया बोली, मेरा भी चिकन कढ़ाई सीख कबाब खाने को बड़ा जी कर रहा है। चलो फिर सब तैयार हो जाओ। अब्बा जी ने शाहाना आर्डर जारी किया। लड़कियां झट अपने कमरे की तरफ भागी। 1 घंटे के बाद तीनों अपने 2 नए जोड़े पहने, जिसमें शोख रंगों शीशों का डिज़ाइन कल ही बनकर आया था और साथ में अच्छा खासा मेकअप किया आ गई। ओहो जाहिलो, तुम्हें अकल नहीं आएगी, रेस्टोरेंट जा रही हो किसी के ब्याह पर?
तौबा, मैं तो अकलें दे देकर थक गया, मगर हैं ना गवर्नमेंट स्कूल की पढ़ी हुई, अपनी टेढ़ी मेढ़ी उस्तानियों से मुतासिर। ये ऐसी हरकतें नहीं करेंगी तो फिर क्या करेंगी? जफरी तप कर बोले जा रहा था। अम्मी जी जो बेटियों की बलाएं लेने ही वाली थी, जफरी की बातें सुनकर लब भींच लिए और अपने कपड़ों की तरफ घबरा घबरा कर देखने लगी। पता नहीं जफरी इन पर क्या तबसरा करेगा, मगर खैरियत रही। आज पहली मर्तबा लिबास के इम्तहान में पास हो गई। अब्बा जी तो कभी अपनी राय पर चलते ही नहीं थे, जफरी और मजहर के मशवरे से ही तैयार हुआ करते थे। सुनते हो जी, मेरे लिए 2 बोतलें मंगवाना, एक पीकर मैं नहीं रचती। अम्मी जी ने कहा तो अब्बा जी से था, मगर जफरी तब क्या। अपनी लैंग्वेज ठीक कर लें प्लीज़। उफ, आप लोग कभी भी अच्छी सोसाइटी से उठने बैठने के काबिल नहीं हो सकते। अच्छा अच्छा, चलने की करो ना, अपना मूड ख़राब करो ना हमारा। मजहर के कहने पर सब चलने को उठ खड़े हुए। क्या ख्याल है, नन्नी की सालगिरह का फंक्शन ना अरेंज किया जाए? चिकन टिक्के से इंसाफ करते जफरी को नया आइडिया सोच जाता। क्या मतलब है तुम्हारा? जब हम आपस के लोग बैठे हों तब तो आसान ज़ुबान में बात कर लिया कर। मतलब मेरा ये है अम्मी जी कि हम नन्नी की सालगिरह मनाते हैं। आस पड़ोस में कितने ही ऐसे घर हैं जहाँ हमारा आना जाना नहीं, मगर वहाँ आने जाने की ज़रूरत है। ये इलाका अपर मिडिल क्लास लोगों का है। यहाँ लोगों में अमीर मॉडर्न दिखाई देने की धुन सबसे ज़्यादा होती है। मैंने जायज़ा लिया है, यहाँ पर भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो ना तो ख़ानदानी पढ़े लिखे हैं, ना ही पीछे से मालदार चले आ रहे हैं, मगर अब उनके पास दौलत भी बहुत है और पैसा भी। जफरी, तो क्या सारा दिन मोहल्ले वालों की जासूसी करता है? राशिदा आपा सियाना वही कहलाता है जो अपनी आंखें खुली रखे। तुम लोग तो बस पता नहीं क्या हो। इसने पेशानी पर हाथ मारकर उनकी अक्लों का मातम किया। अच्छा अच्छा, खाना खाने आए, खुशी खुशी खाओ, कबाब 1 प्लेट और मंगवाओ। बड़े ही गज़ब के हैं। अब्बा जी को इस वक्त सिर्फ खाने से रग़बत थी। घर में नया टीवी फ्रिज तो आया ही, साथ साथ फर्नीचर भी मज़ीद आ गया। पर्दे सिले, कारपेट डले। अब तो रुकैया और लड़कियां सारा दिन बरामदे के कोने में दरी बिछाकर बैठी रहती कि इतना कीमती फर्नीचर कारपेट मैला करते दिल मुट्ठी में आता था। कुछ दिन तो ये सिलसिला चला, फिर जफरी ने एतराज़ जड़ दिया, अगर इन चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करोगे तो कभी इन्हें बरतने का सलीका भी नहीं आएगा। हाय हाय, इतना महंगा ऐसा चमकता दमकता नया नकोर सामान हम दिनों में मैला कर दें, ऐसा जिगरा नहीं है मेरा। पुराने मोहल्ले में ये सब लोगों की बैठकों में भी नहीं होता था, अब हमारे कमरों में रखा है। बड़ा ही दिल करता है पुराने मोहल्ले वालों को बुलाकर ये सब दिखाऊं, मगर जफरी एक तो हर मामले में टांग अड़ाता है। अम्मी जी खुदा के लिए भूल जाएं इस मनहूस मोहल्ले वालों को। सच तो ये कि वो मोहल्ला कभी भी हमारे काबिल नहीं था, इसीलिए तो अल्लाह ताला ने हमारे वहाँ से निकलने का बंदोबस्त कर दिया, और वहाँ के जाहिल गंवार लोग अभी भी वहीं हैं, हमेशा वहीं रहेंगे। तो और क्या। अच्छा, इन सब बातों को छोड़ो, नन्नी के फंक्शन की तैयारी करो। 10 तारीख को है ना? अम्मी जी ने मुस्कुरा कर कहा। तौबा तौबा है अम्मी जी। जफरी पेशानी पर हाथ मारकर बोलने लगा। ना मुराद, क्यों ज़रा ज़रा सी बात पर ख़ुद को पीटने लगता है? अब क्या गलती होगी मुझसे? गलती ये हुई है कि आपके जहन से 10 तारीख नहीं निकलती, जबकि हम ये फंक्शन 25 अप्रैल को अरेंज कर रहे हैं ना। तो क्यों 25 को कर रहे हो? 10 रख लो। नन्नी 10 तारीख को ही पैदा हुई थी, वो दिसंबर की 10 तारीख थी। हम अप्रैल में फंक्शन कर रहे हैं और 25 तारीख ही हमें सूट कर रही है। पर दफ़ा हो, मैंने अभी हांडी भी चढ़ानी है। पहली नवाबजादियाँ थी, अब तो बिल्कुल ही हाथ पांव तोड़ कर बैठ गई हैं। अम्मी जी बुड़बुड़ाती हुई किचन में चली गई। तुम सब भी कान खोल कर सुन लो, 10 अप्रैल डेट है। हाँ हाँ, हम पढ़े लिखे हैं, मुसर्रत ने बेनियाजी से कहा। आपा, टेलर को कपड़े दिए थे, आज ही का कहा था इसने कि सिलवा कर ले जाना। नन्नी ने बर्गर खाते हुए दोनों बहनों को याद दिलाया। हाँ, याद ही नहीं रहा, चलो चलते हैं। दोनों उठ खड़ी हुई। नन्नी ने भी करीब रखी बोतल से मज़ीद केचप बर्गर पर उंडेली और चल पड़ी। ए नन्नी, जफरी ने पुकारा। क्या है? बुलाना तो सीख लो। ये ए नन्नी क्या होता है? मैं कह रहा था अपना खाना पीना कुछ कम करो। तुम पहले भी कुछ ज़्यादा स्मार्ट नहीं थी, अब तो किसी भेड़ की तरह दिखाई देती हो। बस फ़र्क इतना है कि भेड़ सफ़ेद होती है, तुम कुछ निस्वारी से हो। ऐसे ही भेड़ खामखा निस्वारी। कभी अपनी शख्सियत देखी है? मक्कारियाँ कर कर के लुमड़ दिखाई देने लगे हो। हिसाब बेबाक करके वो अपने और बहनों के मुश्तरका कमरे में चली गई, जहाँ इन बहनों को 1 घंटा मेकअप के लिए दरकार था। नन्नी का फंक्शन बड़ा ही शानदार रहा। आस पड़ोस के लोगों ने काफ़ी जोशो खरोश के साथ शिरकत की और उनके खातिर तवाज़ो के इंतज़ामात को काफ़ी सराहा। ठेकेदार साहब की फ़ैमिली को तो ये लोग बहुत ही पसंद आए। कुछ कुछ अपने ही जैसे लगे, कम तालीम याफ्ता मगर मॉडर्न बनने की शौकीन लड़कियाँ, उल्टे सीधे फैशन करके ख़ुद को हीरो समझने वाले लड़के, बच्चों के इशारों पर अपना तमाशा बनवाते अब्बा और अम्मी।
अरे कम बख्तो, ये तो मुझे अपने घर का माहौल लग रहा है। ठेकेदारनी ने अपनी बेटियों से सरगोशी की थी। ना अब हम इतने बदसूरत हैं। लड़कियां खुद को राशिदा मुसर्रत नन्नी से मिलाने पर खफा हुई और यूं मुंह फुलाए खफा खफा सी शक्ल बनाए खड़ी ठेकेदार की मजली बेटी जनाब जफरी मियाँ के दिल को भा गई। हालांकि ख्वाब तो बड़े ऊंचे थे। सोचा करते थे दुल्हन इतनी गोरी नहीं चाहिए कि मैम देखे, कि गोरी मैम देखे तो वो भी ठिठक जाए, बाल घटाओं जैसे, आवाज़ मंदिर की घंटियों जैसी। हाँ, मगर जफरी मियाँ को जिस चीज़ ने अट्रैक्ट किया था वो था इनकी अम्मा का पहना हुआ बहुत सा जेवर। लड़कियों ने भी भारी लॉकेट, चैन, टॉप्स वगैरह चढ़ा रखे थे। जफरी साहब कुछ दिन एक सुनार दोस्त के साथ बैठते रहे थे, इसलिए यकीन था इस फील्ड में धोखा नहीं खा सकते। लोग वाकई बहुत पैसे वाले हैं, बस बरतने का चज नहीं है। बहरहाल जेवर देखकर ये नहीं सोचा था कि यहीं लट्टू भी हो जाना, ये तो दिल का अपना फैसला था। सलमा की खिदमत में खुद केक पेश किया, फ्रूट चाट के बारे में पूछा, अगर पसंद हो तो ला दूं। जवाब में वो जिस तरह शर्माई इठलाई, मालूम हो गया कि दाल बहुत जल्द गल सकती है। और यहीं मजहर साहब को भी गली के कोने पर बने क्लिनिक वाले जाली डॉक्टर साहब की बेटी फरहत भाग गई। डॉक्टर साहब के पास डिग्री असली नहीं थी, मगर नोट असली कमाते थे और बहुत कमाते थे। घर में मुनक्किद की गई पहली तकरीब इस लिहाज से बेहद मुबारक और बाबरकत साबित हुई। जफरी के इसरार पर ठेकेदार साहब के यहाँ आना जाना बढ़ा दिया गया और अम्मी जी ने बताया उनकी मंझली बेटी सलमा तो बहुत ही मेहमान नवाज लड़की है। उसका तो बस नहीं चलता, घर में मौजूद हर शय उठाकर हमारे सामने सजाते और बात बात पर बुरी तरह शर्मा भी जाती थी। और जफरी साहब सुनकर मुस्कुराते रहे। मजहर का इसरार था डॉक्टर साहब के घराने से ताल्लुकात बढ़ाए जाएं। उनकी बेगम, बहू, बेटी इस रोज़ कितने इसरार से बुला भी तो रही थी। और अम्मा बहनों का एक चक्कर उधर का भी लग गया। वापस आकर डॉक्टर साहब की बेगम पर सब खूब ही हंसी। खालिस पेंडू हैं, ऐसे ऐसे लफ्ज़ बोलती हैं कि बस हंसी रोकना मुश्किल हो जाता है। हैं तो पैसे वाले ना, घर में हर शय कीमती तो है। मजहर ने सवाल किया। हाँ भाई, घर तो ऐसा है कि बस देखे जाओ, हर शय कीमती से कीमती। इनकी बहू और बेटी ने कपड़े भी बड़े ही अच्छे पहन रखे थे और उनकी बीवी बड़ी ही शोर मार रही थी कि जी हमने तो कभी कम कीमत के कपड़े ख़रीदे ही नहीं। तुम्हारी खातिर तवाज़ो तो खूब की ना। नहीं, कोई इतनी ख़ास भी नहीं, बस चाय, कबाब और बिस्किट। भूखी न दीदी, और तुम्हें क्या खिलाती। मजहर को मुसर्रत का यूँ कहना अच्छा नहीं लगा। हाय, खातरे तो ठेकेदार साहब के घर हुई थी, याद करके चटखारा लिया। जफरी मुस्कुराया और मुस्कुराहट छुपाने को मुंह फेर लिया। वैसे डॉक्टर की बीवी से मेरी तरह सादा मासूम तबीयत में तो इसके घर ज़रूर आना जाना मैं रखूँगी, ऐसी तबीयत है उनकी भी। ये अम्मी जी के ख्यालात थे जिनसे मजहर को पूरा इत्तफाक था। वो कह रहा था, ज़रूर अम्मी जी, आजकल के दौर में मासूम सादा लोग मिलते ही कहाँ हैं। साकिब को गए पूरा 1 साल हो गया। इस अरसे में मजहर और जफरी दोनों की मुरादें बर आईं। जफरी ने सलमा को और मजहर ने फरहत को अपने नाम की अंगूठी पहनाकर बुक कर लिया। वैसे ही रिश्ते कुछ इतने आराम से भी नहीं तय हुए। दोनों के वालिदैन को इतराज़ था, लड़के कुछ काम वाम नहीं करते, मगर लड़कियां बज़ीद थी। खाने पीने की हड़ताल की धमकी भी दे डाली और ये भी बताती थीं कि वो आजकल फारिग ज़रूर हैं, बहुत पैसा है इनके पास, वालिदैन इन्हें अनकरीब जर्मनी भिजवा रहे हैं। और लड़कों के वालिदैन भी बड़े बड़े ख्वाब दिखाते थे। अब्बा जी बताते थे कि मेरा इरादा तो सुपर स्टोर बनाने का है, मगर पहले लड़कों को जर्मनी भिजवाऊँगा, इसके बाद ये काम करूँगा। और आखिरकार दोनों घरानों ने हाँ कर ही दी। जफरी और मजहर को ये अंदाज़ा तो था ही कि ससुराल पैसे वाली है, मगर इतना ज़्यादा पैसा होगा ये अंदाज़ा तो मंगनी वाले दिन ही हुआ। दोनों को कीमती अंगूठियाँ, घड़ियाँ पहनाई गईं, हज़ारों रुपए सलामी में दिए गए। और तो और अम्मा और बहनों को भी बड़े अच्छे कीमती तोहफे मिले। खाना भी बहुत अच्छा खिलाया गया। और इस रोज़ बिरादरी वालों को अंदाज़ा हुआ रुकैया और अब्दुल इनके अंदाज़ों से बढ़कर अमीर और मगरूर हो चुके हैं। मगर इनका गरूर किसी को बुरा नहीं लगा। अब अक्सर रिश्तेदारों की नज़र उनकी बेटियों पर थी। अगर इनमें से कोई हमारे बेटे से मंसूब हो जाए तो ऐसे शानदार फंक्शन हमारे लिए भी हो सकता है। और जहेज़ तो ऐसा मिलेगा, सारी बिरादरी जल जल जाएगी। बिरादरी को जलाना जैसे ज़िंदगी का अहम मिशन था। साकिब को फ़ोन पर ये रिश्ते तय होने की इत्तला भिजवाई गई और वीडियो तस्वीर जल्द भिजवाने का वादा किया गया। इसने जब अम्मा बहनों की ज़ुबानी तकरीब का हाल सुना तो मारे खुशी के रोने लगा और बोला, आप सब शुक्राने के नफल अदा करें और सदका दें। यह अल्लाह की मेहरबानी है कि इसने हमें ये दिन दिखाया, वरना वो भी वक्त था, इतने अमीर लोग तो क्या, हमारे मिडिल क्लास के रिश्तेदार हमें देखकर मुंह फेर लेते थे। आय हाय, क्या बताऊं बेटा साकिब, ये सारे रिश्तेदार अब कैसे मुंह खोले हैरत हसरत से जफरी और मजहर को देख रहे हैं।
ان کی حالت دیکھ کر ہم سب کو تو بڑی خوشی ہو رہی تھی۔ اچھا ہے جل جل مریں، ان کی پرواہ کرتی ہے ہماری جوتی۔ ایسے نہ کہیں امی جی، اللہ نے اچھے دن دکھائے ہیں تو دل بھی بڑا کر لیں۔ بھول جائیں ان لوگوں کی زیادتیاں، ابھی ہم نے بہنیں بیاہنی ہیں، اور اس کے لیے برادری سے باہر سے تو اچھا کوئی رشتہ آیا نہیں، تو برادری ہی صحیح۔ ہمارے خاندان میں کئی اچھے پڑھے لکھے لڑکے ہیں، دفعہ دور میں برادری کو منہ لگانے کی قائل نہیں۔ ایسا نہ کہیں، ہماری تینوں بہنیں کچھ خاص پڑھی لکھی نہیں ہیں۔ لڑکوں کی بات اور ہے، مگر لڑکیاں جو کم پڑھی لکھی ہوں، صورتیں بھی واجبی ہوں، بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ آج تو لوگ اگر زیادہ جہیز کے لالچ میں انہیں اپنا بھی لیں، مگر بعد میں ساری زندگی باتیں سناتے رہیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے، سوچیں گے۔ تم سناؤ، تنخواہ میں کچھ اضافے کی امید ہے یا نہیں؟ ابھی تو نہیں ہے امی جی، اور میں آپ لوگوں سے کہہ کہہ کر تھک گیا ہوں، دکان آپ لوگ پتہ نہیں کیا سوچ کر نہیں خرید رہے۔ ایک کریانہ سٹور ہی ڈال لیں، جیسے جیسے میں رقم بھیجتا رہوں گا اسے بڑھاتے رہیے گا۔ یہ تو مردوں کی باتیں ہیں بھائی، میں کیا جانوں۔ انہوں نے ابا جی کو آگے کر دیا، اور ابا جی ثاقب کو مہنگائی کے طوفان کے بارے میں بتاتے رہے، جس کی وجہ سے ان کا ثاقب کے بھیجے پیسوں میں بڑی مشکل سے گزارا ہو رہا تھا۔ پتہ نہیں اس لڑکے کو کیا ہے، جب بھی فون کرتا ہے ایسی باتیں کر کے موڈ ہی خراب کر دیتا ہے۔ سب کو ابا جی کی طرف بات سے پورا اتفاق تھا، یہ سب تو اب بہت آگے نکل گئے تھے، مگر بیچارہ ثاقب ابھی تک اسی لوئر مڈل کلاس ذہنیت کے ساتھ جی رہا تھا۔ اوف، کیا بنے گا ثاقب بھائی کا، پتہ نہیں کب عقل آئے گی انہیں۔ لڑکیاں تو ان کی زبانی اپنی صورتوں کے واجبی ہونے کا سن کر تپی بیٹھی تھیں۔ شام تک سب کا موڈ آف رہا، پھر ٹریس جانے کا پروگرام بنا تو تنے مردہ میں جان سی پڑ گئی۔ آنے والے دنوں میں کسی نے بھی ثاقب کا ذکر نہیں کیا، اور اس کے ذکر کے ساتھ ہی اس کے خیالات جو یاد آ جاتے تھے، مگر 15 دن بعد اس کا فون آ گیا۔ بہنیں تو ادھر ادھر ہو گئیں۔ مظہر، جس نے کئی روز سے ای میل بھی اس کے خوف سے چیک نہیں کی تھی، ریسیور اٹھانے سے پہلے اس کا نمبر دیکھ کر پیچھے ہٹ گیا۔ آپ ہی اٹھائیں، ان کی بوگس نصیحتیں میری برداشت سے تو باہر ہیں۔ واقعی ثاقب کی وہی باتیں تھیں، بہنوں کے لیے برادری میں رشتے دیکھیں، فضول خرچی مت کریں، دکان کھول لیں، وغیرہ وغیرہ۔ ایک اور نصیحت جو ظفری کو از حد بری لگی وہ یہ تھی کہ ظفری اپنی پڑھائی دوبارہ شروع کرے۔ پھر ایک مزید دھماکہ، اس نے شرماتے ہوئے کہا، میرے لیے بھی رشتہ دیکھیے۔ ہاں، یہ بھی بھلا کہنے کی بات ہے، میں تو جب بھی کوئی اچھی لڑکی دیکھتی ہوں فوراً تیرا خیال دل میں آتا ہے، جھٹ رشتہ لے کر پہنچ جاتی ہوں، مگر کیا کہوں بیٹا، لڑکی والے جب تمہاری تصویر دیکھتے ہیں انکار کر دیتے ہیں۔ ثاقب یہ نہیں کہہ سکا کہ میری صورت تو سارے بہن بھائیوں میں اچھی ہے، جب ان دونوں بھائیوں کو لڑکیاں مل گئیں تو مجھے کوئی کیوں نہیں مل سکی، مگر اسے اپنے گھر والوں پر پورا بھروسہ تھا، وہ اس سے غلط بیان نہیں کریں گے، ایسا تو وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ کہا تو اتنا، آپ خوبصورت امیر لڑکی مت ڈھونڈیں، بس تھوڑی پڑھی لکھی سمجھدار ہو، اس کے علاوہ تو مجھے کچھ نہیں چاہیے امی جی، برادری میں ہی کتنی لڑکیاں ہیں، آپ ادھر ہی دیکھ لیں۔ آگ لگے برادری کو، تجھے رہ رہ کر برادری کیوں یاد آنے لگتی ہے؟ میں تو تیرے لیے ایسی لڑکی لاؤں گی جو دیکھے بس دیکھتا ہی رہ جائے۔ میرا خواب تو ڈاکٹر بہو لانے کا ہے۔ امی جی، یہ تو آپ کی محبت ہے، میری مانیے، کوئی عام سی لڑکی میرے لیے دیکھیے، بس رہنے دے، بڑے ارمان ہیں میرے دل میں، اور میں تیرے لیے کوئی شہزادی لاؤں گی۔ لو اور سنو، بہنیں ابھی گھر میں بیٹھی ہیں، دونوں بھائیوں میں سے ایک بھی اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہوا اور اسے شادی کی پڑ گئی۔ میں کہتی ہوں پیسہ آتے ہی سب کا خون کیوں سفید ہو جاتا ہے؟ اے مالک، اپنے بچے سے مجھے یہ امید نہیں تھی۔ واقعی بیوی، سچ کہتی ہو، میں بھی حیران ہوں، ساری ذمہ داریاں بھلا کر اس نے شادی کی بات آخر کس طرح سوچ لی۔ شادی ہو گئی تو ہمیں تو بالکل ہی بھول جائیں گے، اور ہم اسی سڑے ہوئے محلے میں پہنچ جائیں گے، اور تو اور ہمارے جو اتنے اچھے رشتے طے ہوئے ہیں، غریب ہوتے ہی وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ مظہر کو ثاقب کی چالاکی، خود غرضی پر سخت تاؤ آ رہا تھا۔ فرحت خود سے دور ہوتی محسوس ہو رہی تھی، ثاقب کی باتوں نے سب کے موڈ خراب کر دیے تھے، جسے بحال کرنے کو ریس کورس جانا پڑا اور کھانا بھی باہر ہی کھانا پڑا۔ لڑکیوں کے لیے رشتے تو بہت آ رہے تھے، مگر بات کہیں بن نہیں پا رہی تھی۔ اب تو آتے جاتے مظہر اور ظفری کے گھر والے بلکہ سسرال والے یہی سوال کرتے، لڑکیوں کے کہیں رشتے طے ہوئے یا نہیں؟ یہ لمبی زبان والی بد لحاظ 3 لڑکیاں انہیں اپنی بچیوں کا مستقبل خراب کرتی محسوس ہو رہی تھیں۔ ظفری اور مظہر کو بھی احساس ہو گیا تھا، سسرال والے اور ہونے والی بیویاں اب ان تینوں کو اپنے اپنے گھر میں دیکھنا چاہتے ہیں، اس لیے ان دونوں نے ان کے لیے برادری میں رشتے طے کرنے پر زور ڈالنا شروع کر دیا۔ تم دونوں کو ہو کیا گیا؟ بہنیں بہت بھاری ہو گئیں؟ پہلے تم لوگ برادری کے خلاف باتیں کرتے تھے، اب ضد ہے کہ برادری میں طے کر دو۔ 2 سال تو ہو رہے ہیں امی جی، باہر کا کوئی ایک رشتہ بھی ڈھنگ کا نہیں آیا، جو بھی آیا نکما، لالچی، اس بات کا خواہش مند کہ لڑکی کا بھائی ہمیں بھی باہر بھیجوا دے۔
جو بھائی ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکا وہ کسی اور کو کیا بلائے گا؟ قسم سے اگر میں باہر گیا ہوتا تو اب تک سب سیٹ ہو گئے ہوتے۔ ظفری بڑے ہی جوش میں تھا۔ بھائی نے کیا کسی کو بلانا ہے، اپنی شادی کی فکر پڑ گئی۔ مظہر نے طنزیہ ہنس کر کہا، اچھا پھر ایک بار برادری کے گھروں کے چکر لگاتی ہوں، بڑھاتی ہوں بھائی میل جول۔ میں تو تم لوگوں کے کہنے میں آ کر سب کو چھوڑ ہی بیٹھی تھی۔ اگلے روز راشدہ سے اپنا بہترین جوڑا استری کروایا، پاؤں میں باٹا کی جوتی پہنی، چادر اوڑھنے کے بعد جب پرس بھی اٹھا لیا تو وہ چونکی۔ یہ اتنی تیاری کہاں جا رہی ہو؟ سب کام ہوتے ہیں، تمہیں کیا پتہ اب ہر بات تم لوگوں کو بتانا کیا ضروری ہے؟ ظفری نے سخت بیزاری سے کہا، پھر بائک کی چابی میں سے اٹھاتے ہوئے امی جی کو جلدی چلنے کا اشارہ کیا۔ آج ارادہ امی جی کی کزن خالہ شوکت آرا کے ہاں جانے کا تھا۔ شوکت آرا کے حالات کبھی بہت برے ہوا کرتے تھے۔ شوہر اور دونوں بیٹے کپڑے کی ایک بڑی دکان پر سیلز مین تھے، محدود آمدنی، کرائے کا مکان، مگر خالہ شوکت آرا تھیں بڑی سگھڑ۔ اس کے بیٹے راتوں کو محنت کر کے پرائیویٹ امتحان میں بیٹھ کر پڑھ بھی گئے تھے۔ اب پچھلے دنوں خالہ سغرا آئیں تو باتوں باتوں میں شوکت آرا کا ذکر چل نکلا تو بولی، تم کب سے نہیں ملی؟ مجھے تو شوکت سے ملے شاید 3 سال ہو گئے۔ ہاں یاد آیا، خالدہ کے ہاں شادی پر ملاقات ہوئی تھی، مگر اس کے گھر گئے 3 سال ہی ہو رہے ہیں اور اس نے بھی کبھی چکر نہیں لگایا۔ بھائی اس کے تو ٹھاٹ ہی اور ہیں، بیٹوں نے کپڑے کی چھوٹی سی دکان ڈالی تھی، 1 سال میں ہی کہاں سے کہاں پہنچا لی۔ دوسرے سال شوکت نے گھر کی حالت ہی بدل لی، اب تو سنا ہے زمین بھی لے لی، اپنا مکان بنانے کی تیاریوں میں ہے۔ اچھا، حیرت ہے۔ رقیہ کو صدمہ ہوا، خاندان میں کوئی اور بھی امیر ہو رہا ہے، مگر اب جو بیٹیوں کے لیے سوچا سب سے پہلے دھیان شوکت آرا اور اس کے محنتی بیٹوں کی طرف گیا، اور جب اس کے گھر پہنچی تو حیران رہ گئی۔ گھر تو وہی تھا مگر دیواروں پر کلئی، دروازوں پر رنگ و روغن، بڑے اچھے پردے، بیڈ شیٹ، فرنیچر بہت مہنگا تو نہیں جیسا کہ رقیہ کے گھر تھا، مگر پالش شدہ، بڑے ہی سلیقے سے رکھا گیا۔ موسم آتی گرمی کا تھا مگر ہر شے نکھری صاف ستھری، گرمی کا احساس دم توڑ گیا تھا۔ شوکت آرا بڑی محبت سے ملی، کوئی پرانا گلہ نہیں کیا۔ بیٹی پہلے پھل پھر شربت لے کر آئی، تمہاری بیٹی تو پہچانی نہیں جا رہی، بڑی پیاری ہو گئی ہے۔ صرف پیاری نہیں، سلیقہ بھی بہت ہے اس میں۔ شوکت بیٹی کو غور سے دیکھتے ہوئے بولی، یہ دونوں بیٹوں سے چھوٹی ہے نا، کسی بیٹے کا رشتہ طے کیا یا نہیں؟ وہ اصل بات کی طرف آئیں۔ نہیں بھائی ابھی تو نہیں کیا، مکان بنا لیں پھر ان کی شادیاں بھی طے کر دیں گے۔ رشتے تو پہلے ہی طے کر دو، مشورہ دیا گیا۔ میرے بیٹے پڑھے لکھے اور محنتی ہیں، انہیں رشتے ملنے میں بھلا کیا مشکل ہو سکتی ہے؟ اچھا کیسی لڑکیاں، کس طرح کا خاندان چاہتی ہو؟ اچھی سلیقہ مند لڑکیاں جیسی میری بیٹی ہے، تاکہ یہ اپنے گھر چلی بھی جائے تو بھی میرا گھر یوں ہی پرسکون دکھائی دے۔ میری بچیاں بھی بڑی ہی سلیقے والی ہیں اور میری بھی یہی دعا ہے بہویں بھی ایسی ہی ملیں۔ اچھا تم تو دونوں بیٹوں کے رشتے طے کر چکی ہو؟ ہاں بڑی دھوم دھام سے رشتے طے کیے میں نے، لڑکیوں کو سونے کے پورے سیٹ ڈالے، ہزاروں روپے کی سلامی دی، کپڑے لتے سب دیکھنے کے قابل۔ بیٹیوں کے لیے تو اس سے بھی زیادہ کروں گی۔ مگر شوکت آرا نے کچھ خاص توجہ نہیں دی، بولی، میرے سسرال والوں نے برے حالات میں میرا بڑا ساتھ دیا ہے، میری نند جیٹھ سب کی بچیاں بڑی اچھی ہیں، انہی کی لڑکیاں لاؤں گی۔ لو جی گلی مکی۔ رقیہ بیگم کا دل نہیں لگا وہاں، تھوڑی دیر بیٹھی پھر ظفری سے بھابھی نوری کے ہاں چلنے کو کہا۔ ان کے ہاں دونوں کو ہاتھوں ہاتھ لیا گیا۔ جب رقیہ نے بیٹیوں کے رشتے کی تلاش کے بارے میں بتایا تب تو ان کا انداز والہانہ ہی ہو گیا، اپنے بیٹوں کا مکمل تعارف کروایا۔ کوئی بھی بات قابل ذکر نہیں تھی جس زندگی کی لڑکیاں عادی ہو چکی تھیں وہ اس گھر میں انہیں کبھی نہیں مل سکتی تھی۔ بڑی بد دلی کے ساتھ وہ وہاں سے اٹھیں۔ اگلے کئی روز تک یہی سلسلہ جاری رہا، مگر سوائے شوکت آرا کے کوئی بھی گھر اچھا نہیں لگا۔ ہاں رشتہ داروں میں وہ ہاتھوں ہاتھ لی گئیں۔ ثاقب کا اب کے فون آیا تو انہیں رشتہ داروں کی برائیاں شروع کر دیں، ان کی مخدوش مالی حالتوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا۔ جو بھی امی جی، اب بیٹیوں کو بیاہنا تو ہے، اگر آپ کو برادری سے باہر کوئی پسند ہے تو وہاں ہاں کر دیں، ویسے صرف غریبی کو دے کر رشتہ مت چھوڑیں۔ ہماری اپنی مثال سامنے ہے، کیا تھے ہم اور اب اللہ کا کتنا فضل ہے۔ خیر ہم تب بھی بہت سو سے اچھے تھے۔ رقیہ پرانے دنوں کو اب خواب سمجھ کر ذہن سے نکال چکی تھی اور یہ ذکر بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ بولی، میں ان کے رشتے خاندان سے باہر بھی دیکھوں گی، تم اس مرتبہ کچھ زیادہ رقم بھیجوا دو، میں زیور تو بنوا کر رکھ لوں۔ اچھا اماں۔ ثاقب نے آہ سی بھری، پھر بولا، اتنے سال ہو گئے آپ لوگوں کی صورتیں دیکھے ہوئے، جب بھی آنے کا ارادہ کرتا ہوں آپ لوگوں کی کوئی نہ کوئی ضرورت سامنے آ جاتی ہے اور میں چھٹی منسوخ کر دیتا ہوں کہ چھٹی کرنے پر تنخواہ کٹتی ہے۔ اے لو بیٹا، ضرورتیں ہم کیا خواہ مخواہ نکالتے ہیں، میرا یہ مطلب نہیں تھا امی جی۔
इस रोज़ साकिब बुझा बुझा सा था, ज़्यादा बातचीत नहीं की। अम्मी जी, मैं आज डॉक्टर साहब के यहाँ गया था। मजहर ने माँ को बताना ज़रूरी ख्याल किया कि वो शुरू हो गई। नया ज़माना, नए दस्तूर, शादी हुई नहीं और तेरे चक्कर वहाँ लगने शुरू हो गए। शादी के बाद डुगडुगी इनके हाथ होगी और तो बंदर की तरह नाचेगा। ओहो अम्मी जी, बात तो सुन लें। दरमियान में शुरू हो जाती हैं। वो कह रहे हैं जब रिश्ते तय किए थे तब तुम लोगों ने कहा था जल्दी बाहर चले जाओगे, साल होने लगा है, अभी तक यहीं के यहीं हो। आज तो डॉक्टर और डॉक्टरनी के मिजाज ही बदले हुए थे। कहाँ तो बेटा बेटा कहते ज़ुबान सूखती थी, आज उनका बस चलता तो धक्के देकर मुझे घर से निकाल देते। मैं तो बड़ा ही सख्त अपसेट हूँ। भाई से कहें कुछ रकम भिजवाए ताकि मैं अब यहीं कोई सुपर स्टोर सेट कर लूँ। हाँ अम्मी, वो मेरे वाले भी उखड़े उखड़े से हैं। मैंने आप लोगों से इसलिए जिक्र नहीं किया कि ख्याल था संभाल लूँगा, मगर अब तो लगता है कि मामला हाथ से ही निकलता है। आज तो जफरी की अकल भी जवाब दिए हुए थी। हाय हाय निकम्मो, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? मैं लड़कियों के रिश्ते के लिए परेशान हूँ। यहाँ लड़के मेरे हज़ारों के खर्चे करवा कर फिर उम्मीदवारों की लाइन में खड़े हो गए। सारी मुसीबतें मेरे सर। ए जी सुनते हो? हाँ बस देखते रहो उल्टी सीधी वाहियात फिल्में। एक तो ये केबल अल्लाह ताला का अजाब है। मैं सुन रहा हूँ, फिल्म थोड़ी देख रहा हूँ। पता नहीं किस बच्चे ने लगा दिया टीवी। अब्दुल साहब शर्मिंदा होकर सफाइयाँ पेश करने लगे। बड़ी दिक्कतों और कोशिश के बाद राशिदा और मुसर्रत के रिश्ते हस्बे मंशा तो नहीं, बस गुजारे लायक मिल ही गए। लड़कियों ने खूब एहतजाज किया, रोईं चिल्लाईं, मगर रुकैया बेगम क्या करती? हम पल्ला हस्बे ख्वाहिश मिल भी तो नहीं रहे थे। शादी पर खूब खर्च किया, अपने पास तो कुछ भी जमा नहीं था। साकिब ने ज़्यादा रकम भेजी और ये बेहतरीन जहेज़ बन पाया, मगर नहीं, इतना जहेज़ नहीं था। रुकैया बेगम की मारी डींगों से कहीं कम था। कहा था जेवर दुबई से भिजवाना, मगर नहीं भेजा। जहेज़ में देने वाले सामान की एक लंबी लिस्ट इसे पढ़कर सुनाई थी। इसके मुताबिक रकम भेजने को कहा था, मगर नहीं भेजी। मज़े से कह दिया मैं तो इतना ही कर सकता था। अगर साकिब भाई की जगह मैं बाहर होता ना तो बहनों को सोने में तोल देता। जफरी आते जाते आहें भर कर दुख से कहता और बहनों के दुख मज़ीद गहरे हो जाते। मगर जो दुख जफरी और मजहर के ससुराल वालों ने इन शादियों में शिरकत ना करके इन दोनों लड़कों को पहुंचाया, वो मुसर्रत और राशिदा के दुख से कहीं सिवा था। ये वाज़ेह ऐलान था कि वो लोग अब रिश्तों को बरकरार रखने के मूड में नहीं। शादियां हो गईं और दोनों लड़कों ने अम्मी जी की मिन्नत की उनके ससुराल जाएं, जैसे भी हो लड़की वालों को मना लाएं। ना दफ़ा दूर नहीं तो ना सही, मेरे चांद जैसे लड़कों को कोई रिश्तों की कमी है? एक को इशारा करूं सामने लाइन लग जाए। खुदा के लिए डायलॉग ना बोलें अम्मी जी, हकीकत को समझें, मिन्नत करें उनकी, वो रिश्ते ना तोड़ें। कह दें बस लड़के थोड़े दिनों तक अपना बिजनेस शुरू करने वाले हैं। मगर अम्मी जी के जाने से पहले जफरी के ठेकेदार साहब के घर से मंगनी पर दी जाने वाली अशिया वापस आ गई, इस पैगाम के साथ कि अब इनके यहाँ कदम ना रखा जाए। वो किसी किस्म के मुज़ाकरात के मूड में नहीं। हाय कमीने लोग, नन्नी ने नाक सुकेड़ कर तबसरा किया, मुंह पर मास्क लगाने लगी। शाम को अम्मी जी जब डॉक्टर साहब के यहाँ जाने की तैयारियों में थी, उनकी बेगम खुद ही आन पहुँची। मजहर खुद इस्तकबाल को लपका, बस नहीं चल रहा था उनकी राहों में पलके बिछा दे, मगर वो लिफ्ट करवाने के मूड में नहीं थी। अम्मी जी को बुलवाया और इनकार कर दिया। मगर क्यों? आखिर इतनी पुरानी मंगनी क्यों तोड़ डाली? अम्मी जी को गुस्सा तो बड़ा था, नहायत माकूलियत से बोल रही थी। पुरानी? वो उछली। न बताओ मुझे कितनी पुरानी? गज़ब खुदा का, तुम तो मेरी बेटी को बूढ़ी करार देने पर तुली हो। तौबा तौबा, अल्लाह माफ़ी। मैंने तो डॉक्टर साहब से कहा भी था कि अब इस निकम्मे के घर जाती है मेरी जूती, मगर वो भी अपनी माँ की तरह ढीठ हैं, जो कह देते हैं करवा के दम ही लेते हैं। मैं तो यहाँ आके पछताई, सोचा ऐसे ही शीदा के हाथ चीज़ें भिजवा दें तो तुम वजाहतें मांगने चली आओगी। फिर घर आए मेहमान पर चाय पानी का ख़र्चा अलग, मगर मुझे नहीं पता था यहाँ आना भी बेइज्जती करवाना है। चल निशीदा, रखिए सामान। तू क्या अभी तक जफ्फी मार के खड़ी है? और हाँ जी, ये जो कुछ हमने लड़के को और तुम माँ बहनों को दिया था वो भी वापस भिजवा देना। और जो सूट इसके अब्बे को दिया था वो तो इसे कई बार पहने देखा है, अब तक तो बदरंग हो चुका होगा, बेशक रख लेना। और हाँ, अब लड़की का नाम ज़ुबान पे न लाना। अपने भाई के घर रिश्ता पक्का कर रही हूँ, मुरब्बों का मालिक है मेरा भाई। ज़रा ऊंच नीच की कोशिश की तो वो खुद ही तुम्हारे ख़ानदान से निपट लेगा। अपनी कही और ये जा वो जा। मजहर तो रोने वाला हो रहा था, मगर मुरब्बों वाला लड़की का मामू रास्ते की रुकावट था। डॉक्टर ने धमकी भी तो दे गई थी, लिहाजा सब्र के घूंट पीने ही पड़े। कुछ दिनों तक दोनों बुझे बुझे रहे। राशिदा और मुसर्रत अपने अपने दूल्हाओं के साथ तशरीफ़ लाईं। अम्मी जी ने इस मौका पर भी दौलत की नुमाइश ज़रूरी समझी और इन्हें देखकर शदीद गुस्सा भी आया, जिसे पीना पड़ा।
کہ टके टके की ये लड़के खुद को पता नहीं क्या समझ रहे थे, यूं मुंह बनाकर अकड़ कर बैठे थे जैसे उनकी बेटियां लेकर एहसान कराया है। इतने अच्छे खाने यूं मुंह बनाकर खाए जैसे जहर खा रहे हो। लड़कियों, ये तो बड़े ही कमीने से हैं। अलहदगी मेहमान ने बेटियों से कहा। तो और क्या अम्मी जी, तुम्हारी ही पसंद है, राशिदा जल कर बोली। मगर राशिदा के बरक्स मुसर्रत ने माँ का घुटना पकड़ कर राजदारी से कहा, इन्हें ज़्यादा लिफ्ट करवाने की ज़रूरत नहीं। जितना आप बीच बीच जाएंगी नखरा दिखाएंगे, आप नखरे से रहें, ये बीच बीच जाएंगे। वाकई बात तो काबिल गौर थी। अगली सुबह उन्होंने दामादों को नज़रअंदाज करने की पॉलिसी अपनाई। पहले तो वो सास साहिबा के बदले रवैये पर हैरान दिखाई दिए, फिर अपनी अपनी बीवियों से सास के ख़राब रवैये के बारे में पूछा। मेरी अम्मी ऐसे ही मिजाज की हैं, जो पसंद आया तो बहुत आया, फिर किसी की बात बुरी लग गई तो वो दिल से उतर गया। आप भी पसंद नहीं आए, कह रही हैं वो तोहफे भी नहीं दूंगी जो आप लोगों के लिए लेकर रखे थे। और लालची दामाद बहुत ही परेशान हो गए। अम्मी जी को कैसे राज़ी किया जा सकता है, इनकी हाँ में हाँ मिलाकर उनकी खिदमत करके। और दोनों ने इस बात में सर हिला दिया कि दौलतमंद ससुराल को नाराज़ करना सरासर बेवकूफ़ी ही तो थी। उन्होंने इस ख़ानदान में शादी इसलिए की थी कि अच्छे खाते पीते लोग थे, वरना लड़कियों की क्या कमी थी, एक से बढ़कर एक मिल सकती थी। मगर आज के ज़माने में लड़की की असल खूबसूरती इसके मैके से मिलने वाले पैसे और तहफ़ में पोशीदा है। साकिब का फ़ोन आया। अम्मी जी ने ख़र्चों की तफसील से आगाह किया। वो खामोशी से सुनता रहा, तसल्ली का एक लफ्ज़ नहीं कहा। और ठीक 15 रोज़ के बाद जब अम्मी जी सर पर हेयर कलर लगाकर बैठी थी, मजहर और जफरी के दोस्त ड्राइंग रूम में बैठे आइसक्रीम बर्गर पेटी से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे, अचानक साकिब चला आया। हाय तुम साकिब, अम्मी जी तो उठकर गले लगाना भी भूल गई। कोक पीती नन्नी भी जहाँ थी वहीं रह गई। अब्बा जी के हवास अलबत्ता कायम रहे। आगे बढ़कर बेटे से हाथ मिलाया, गले मिले और बोले, यार बताए बगैर अचानक चले आए, कहीं नौकरी तो ख़त्म नहीं हो गई? आए हाय, तुम्हारे मुंह में खाक साकिब के अब्बा, कभी तो अच्छी बात कर लिया करो। अम्मी जी भी हवासों में लौट आई, फिर नन्नी भी होश में आई। मिलने मिलाने के बाद सब कमरे में आ बैठे। जफरी को बुलाने के लिए अब्बा जी उठे। साकिब ने रोक दिया, खुद ड्राइंग रूम में चला आया। वाह क्या शानदार दावत उड़ाई जा रही थी, मुफ्त का माल है, आखिर क्यों ना मौज मनाई जाए। दोनों भाई इसे देखकर खुश होने से ज़्यादा इसे देखकर ठिठक गए थे। इसके लिए चाय बनाते, साथ मिलकर खाना खाते, सबको एक ही बात परेशान कर रही थी, साकिब अचानक वापसी क्यों हुई इसकी, जबकि वो शायद इस बारे में कुछ न बताने का तहैया किए हुए था। पूरा एक हफ्ता इस तरह गुजरा। कुछ रिश्तेदारों के यहाँ भी गया, मगर जिस तरह वहाँ इसकी आवभगत की गई वो परेशान हो गया। बाकियों से मिलने का इरादा तर्क कर दिया। लो खामखा तुमने मना कर दिया, इसी बहाने हम भी दावतें उड़ा रहे थे। अब्बा जी हम पर अल्लाह का फजल है, घर में भी अच्छा खासा खाने को मिल जाता है, फिर बेचारों के खामखा क्यों खर्चे करवाए जाएं। और सब मुंह बनाकर चुप हो गए। साकिब ने घर के हालात का बगौर जायज़ा लिया और 5वें दिन जब अम्मी जी ने मासूम सी सूरत बनाकर बताया कि ख़र्चा चलाने को पैसे नहीं, उसने कहा बैंक से निकलवा लीजिए। कौन से बैंक से? अव्वल तो कुछ ज़्यादा जमा था और जो नहीं था वो बहनों की शादियों पर लगा दिया। आखिर को इज़्ज़त का सवाल था, लोग क्या कहते, भाई मुल्क से बाहर की कमाई करता है और बहनों को मिला कुछ भी नहीं। टीवी फ्रिज वगैरह तो आजकल हर कोई दे रहा है। निचला लब दांतों से कुचलने लगा, फिर कुछ देर बाद बोला, आज के बाद घर का खर्च मेरे पास रहेगा, लिस्ट बना दीजिएगा क्या क्या चाहिए। जब नन्नी ने लिस्ट बना कर दी तो बहुत सी चीज़ें फजूलियात में शुमार करके काट दी गईं। घर के किराए का मसला आया, इतने ज़्यादा किराए का सुनकर वो चकरा गया। सिर्फ 2 रोज़ के बाद सामान बांधने का आर्डर जारी कर दिया और बताया, मैंने इससे आधी कीमत का घर किराए पर ले लिया है, अब हम वहीं रहेंगे। और जिस मोहल्ले में घर लिया था सुनकर तीनों बहन भाई एहतजाज करने लगे। नहीं, हम वहाँ नहीं जाएंगे, हमारे मिलने वाले आते रहते हैं इस इलाके में, 4 कमरों के मकान में। जब वो हमसे मिलने आएंगे तो क्या राय कायम करेंगे? वही जो तुम्हारी असलियत है मजहर। तुम्हारी उम्र के लड़के पूरे घर का बोझ उठाते हैं, तुम अभी तक खलंडरे बने फिरते हो। और जफरी, तालीम तुम्हारी अधूरी, आज कहीं नौकरी के लिए जाओ, लोग धक्के देकर निकाल बाहर करें, और तुम कह रहे हो दोस्त आकर क्या सोचेंगे। नन्नी, तुम फैशन कम करके पढ़ने की जानिब ध्यान दो, तुम्हारी बेहतरी इसी में है। और याद रखो, मैं बार बार एक बात दोहराऊंगा नहीं, जहाँ मकान लिया है वहीं एक दुकान भी किराए पर ली है। मेरे पास ज़्यादा सरमाया नहीं, बस जो कुछ है इससे दाल दलिया डाल कर दुकान चलाऊंगा। हाय अल्लाह, क्या मतलब है तुम्हारा, वापस नहीं जाओगे? अम्मी जी तो दिल पकड़ कर बैठ गई। हाल बाकी सबका भी यही था। नहीं, अब मुझे कहीं नहीं जाना। मगर क्यों? अभी तो बहुत खर्चे पड़े हैं, सबसे पहले तुम्हारी शादी करनी है।
मेरी शादी की फ़िक्र ना करें, वहाँ मेरे साथ एक लड़का काम करता था, 7 बहनें हैं इसकी। वो बेचारा उन्हीं के लिए परेशान रहता है। मैं उसकी बहन से शादी करूँगा। और अम्मी जी, बाहर कमाई कोई दरख्तों पर नहीं लगती, बहुत मेहनत करना पड़ती है। और यहाँ आकर मैंने अपनी मेहनत की कमाई को जिस तरह बर्बाद होते देखा है, मत पूछें मेरे दिल पर क्या गुजरी है। मैं तो वहाँ काम कर कर के बीमार पड़ गया था। आप लोगों में से किसी को मेरी ख़राब सेहत दिखाई नहीं दी, सबको पैसों की फ़िक्र रही है। बहुत दुखी हुआ हूँ मैं, मगर मैं वापस नहीं जाऊँगा। अब सबको अपना अपना बोझ खुद उठाना चाहिए। अगर हम तीनों भाई थोड़ा थोड़ा भी कमाएंगे तो बहुत हो जाएगा। मैं और मजहर दुकान संभाल लेंगे, जफरी अधूरी तालीम मुकम्मल करेगा। फैसला सुनाकर साकिब कमरे से बाहर चला गया। फैसला पसंद ना आने के बावजूद कबूल तो करना था। जिथे दी खोती उत्थे आन खलोती, पंजाबी का ये मुहावरा सबको बार बार याद आ रहा था, मगर ज़ुबान पर कोई नहीं लाया। आह भर कर अपनी नादानियों को याद किया। वाकई अगर फजूल में उड़ाने के बजाय अच्छा सा सुपर स्टोर खोल लेते तो ये नौबत तो ना आती। मगर खैर, चलो यूँ ही सही। ये प्यारी सी कहानी अपने इख्तिताम को पहुँची। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह पाक हाफ़िज़।